learners, this is Educator Dhwani Gandhi over here, your brilliant teacher for the subject of accountancy, business studies, and English literature, a verified plus educator on the Unacademy platform who is constantly striving and driving to let you know the business world a little better. The topic today is also something very great and amazing, just like that. You all know I'm out of town right now, and there have been a oops, that's where I lack into communication. This is where the real game starts. Hi. Now, what we are learning today is something which is really beyond your books. When I say it means beyond your books, it genuinely does. I am not here to teach you your random NCRT or any random chapter that you come across or make you learn through history and the various different types of your commerce industry. I'm exactly not here to do that. When I say business studies beyond the books, it means that I want you to see it through the eyes of reality, where you're not learning the theoretical aspect of it. Let me tell you a word: business. Business, we all mean it's exactly a state of being busy. That's what we have been learning till date. But why being busy? Why can't one person be idle and do business? Why? There is a lot much thinking when we come to this word, and we often make it understandable for ourselves. That is when it was devised that, let us say, okay, if you're sitting idle, you are doing nothing. Like the common Hindi slang goes, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का. Exactly. So there it meant कि कोई जब कोई काम करता ही नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, it would mean that they are good for nothing. वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहे, इट मीन्स दैट दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. वो कुछ अर्न नहीं कर रहे, दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग बैक टू द सोसाइटी. एंड इसीलिए व्हेन वी सडनली केम अप विद दिस कॉइन्ड टर्म कि द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी. ठीक है, मतलब हमें बिजी रहना है कुछ ना कुछ काम करते वक्त. सो दैट इज समवेयर रिलेटेड टू बिजनेस. वी से नो, माइंड योर ओन बिजनेस. अपने काम से काम रखो. सो बिजनेस का एक्चुअल मीनिंग होता है काम करना. एंड दैट इज वाई जब आदमी काम कर रहा होता है, इट मीन्स कि दे आर नॉट सिटिंग आइडल, दे आर डूइंग समथिंग, एंड दिस समथिंग इज प्रॉबली सपोज टू बी वेरी फ्रूटफुल. नाउ टेकिंग दैट लाइन इनटू कंसिडरेशन, हम लोग आगे बढ़े कि चलो ठीक है, बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस करना है, धंधा करना है, काम करना है. इट वुड समवेयर मीन कि चलो कुछ तो ऐसा फ्रूटफुल करना है जिससे हमें कुछ फायदा हो. We benefit something out of it. Now, if we have to benefit ourselves out of it, we obviously need to know this thing that this world works on one policy. Till the time you are not going good to others, good is not going to get done with you. तो ऑब्वियसली अगर आपको आपका बेनिफिट देखना है, तो आपको पहले मेक श्योर करना होगा कि आप किसी और का बेनिफिट इस चीज़ में से निकाल रहे हो विथ योर बिजनेस. I hope you are liking this approach that I'm bringing on board here, because it is way not the conventional method. It is the different area, different aspect that I'm trying and wanting to enlighten in your mind. तो जब हमने ये चीज़ कही कि ठीक है, हमें बिजी रहना है, हमें कुछ काम करना है, तो चलो भी काम कर ही रहे हैं, तो एवी क्यों काम करें. काम कर रहे हैं तो लेट अस ब्रिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट. लेट्स डिराइव सम बेनिफिट जो हमें हेल्प करे, जो हमारे लिए अच्छा हो. अभी अगर हमें बेनिफिट चाहिए, तो वी नीड टू मेक श्योर कि ये बेनिफिट जो है हम इक्वली किसी और को भी दे रहे हैं. क्योंकि जब हम किसी और को बेनिफिट देंगे, तो देन दैट इज व्हाट दे विल गिव अस समथिंग इन रिटर्न, एंड दैट इज व्हेन योर होल बिजनेस साइकिल विल एक्चुअली ऑपरेट. अब इन दिस होल सिनेरियो ऑल्सो, मैम क्या ज़रूरी है खाली कि हम लोग सिर्फ एक एक बिजनेस, यानी हम जैसे बोलते हैं कि मैम एम्प्लॉयमेंट है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, दीज आर थ्री रियली डिफरेंट सेगमेंट्स. डज दैट मीन द पीपल हु आर डूइंग द प्रोफेशन और द पीपल हु आर इनटू एम्प्लॉयमेंट डोंट वर्क, दे आर नॉट बिजी? थिंक अबाउट इट. दे आर बिजी, दे आर ऑफ कोर्स डूइंग वर्क. व्हेन वी टॉक अबाउट एन एम्प्लॉई, जब वो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा है अपना, तो क्या वो काम नहीं कर रहा? इनफैक्ट शायद वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है. Now the point is, वो काम तो कर रहा है, but not necessary कि उसकी खुद की आइडियाज़ वहाँ लग रही है या नहीं. Whether he is owning the work he is doing or not, that's a different ball game.
क्या वो अपने बेनिफिट्स के लिए वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी एक सवाल आ जाता है वहाँ पर। फिर चलिए बात करते हैं प्रोफेशनल पीपल के बारे में, लाइक ऑल द प्रोफेशनल्स, लेट दैट बी अ लॉयर, लेट दैट बी अ डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट मेजॉरिटी ऑफ यू एस्पायर टू बी। नाउ इसमें सारे जो ये मैंने वर्ड्स बोले हैं, कहीं ना कहीं साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी सभी बच्चों के साथ आ रहे हैं. So this particular session is not for actually, I can tell you that one particular person, one particular stream. It is about one basic knowledge, one different approach that I want everybody to know, irrespective of whether even you are 11th 12th kid or उनके जूनियर, क्योंकि 90s एंड 10th भी जो है बहुत जल्द आने वाले हैं हमारे साथ. एंड आई वॉन्ट देम टू एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ कॉमर्स. एंड इस कॉमर्स का जो एक बैकबोन है बिजनेस स्टडीज, द मेन सब्जेक्ट बिहाइंड कॉमर्स एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद आवर स्ट्रीम दैट वी आर इनटू. तो मुझे चाहिए कि हर कोई इंसान जो आज इसको देख रहा है प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे उन सारे वर्ड्स को जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ समझें. अब हमने ये भी बात कर ली कि मैम ये जो सारे प्रोफेशनल लोग हैं, कहीं ना कहीं ये लोग हेल्प कर रहे हैं टू दोज पीपल हु वांट टू डू बिजनेस. कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो रेंडरिंग सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज टू द सोसाइटी. तो यहाँ पर इनका जो डोमेन है ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड हो जाता है. एंड देयर सर्विस इज इन अ वे ट्राइंग टू बेनिफिट द वंस हु आर ट्राइंग टू टेक सर्विस फ्रॉम देम. गौर से समझिएगा. आप एक डॉक्टर हो, आप अपने आप को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर नहीं बन रहे हो. यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर सो दैट यू कैन हेल्प द पेशेंट्स कम आउट ऑफ वट एवर miseries, whatever illness, whatever diseases that they are having. If you are a lawyer, you are not becoming a lawyer so that you can file, or like file cases against yourself or file cases against somebody else, or because you have some issues with those people, or you want to file a legal suit and you want to be like the victorious person out there. The whole point over here to explain you guys is that a lawyer becomes a lawyer so that he or she can help the other people who are in trouble and help them get some legal solution to their problems. When I talk about a chartered accountant basically does not want to save their own taxes, does not want to really do their own financial planning only. उसके लिए उनको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. What they are trying to do here is to aid these people who are doing these businesses. Because anyways, whether you are doing business or not, you are an individual. You are doing some sort of work. And for your work, any hindrances that are there in between, these professionals help you out as a society. That's where profession lies. And we've already discussed about employment. So what leaves with us behind is the person who's doing this business. When I talk about it, the first word that comes in your mind is, ma'am, entrepreneurship. When I say entrepreneurship, the second most fruitful word that comes in your mind is, ma'am, our own business, where we are the owners of that particular idea. We are the owners of that particular organization. And everything happening under that organization is something who are, or some people who are reporting to us. These people are the ones who will come and who will tell us, all right, this is what we have been doing for you. Or we will be the one who will come and tell them, this is what you have to do, this is my business and I want you to work this way here. I'll be paying some remuneration to you for this. This will be your salary. Then that be professionals like CA and charter, the company secretary and everybody. We will be paying some sum to them, some amount of money to them as their fees for rendering these services to us. Ultimately, the profit, this whole thing is happening for what? This whole work is getting for what? For the benefit. And what the benefit over here is your profit. तो ये जो प्रॉफिट हम सबका बेनिफिट है यहाँ पर, ये इट इज़ ऑफ ऑल द ओनर्स ऑफ द बिजनेस. अब बिजनेस है तो ये अलग अलग फॉर्म्स में होता है. जैसा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, तो सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल इंसान का पूरा बिजनेस होगा. जॉइंट हिंदू फैमिली में परिवार के सारे लोगों का वो बिजनेस होगा. देन व्हेन आई टॉक एग्जैक्टली अबाउट अ पार्टनरशिप, कुछ अलग अलग लोग मिलके एक पार्टनरशिप करेंगे. एज पार्टनर्स वो लोग एक साथ आएंगे, एक बिजनेस को खड़ा करेंगे एंड द प्रॉफिट विल बी ऑफ देयर्स. अगर मैं आगे बढ़ के बात करूँ एक कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी बेसिकली अपने शेयर होल्डर्स से बनती है. तो जो सारे शेयर होल्डर्स हैं वहाँ पर, वो हो गए इस बिजनेस के ओनर. अब क्योंकि ये इस बिजनेस के ओनर है, तो इन्हें अपने जो भी राइट्स है, अपना जो भी रेम्यूनरेशन, अपना जो भी बेनिफिट है, वो प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगा.
और जो ये लोग बाकी लोग हैं वो इनको हेल्प करेंगे इस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए या इस प्रॉफिट को अपना बनाने के लिए. लेट मी टेक फर्दर दिस होल डिस्कशन. नाउ when you see over here the next point that I'm bringing up, it's actually not a point. It's beyond pure words. Now, why do I say so? It is beyond words. Why? What do I exactly mean by bringing up these people over here? We all, for a matter of fact, know business cannot be worked out in isolation. When I say isolation, इसका meaning होता है, for example, मेरा ये हाथ ले लीजिए. Just take for example this hand of mine. You see 5 fingers over here, 5 really different fingers out there, correct? Now that you see these 5 different fingers, you see all of them are really different. हर एक अलग है. पर क्या ये पांचों के पांचों एक साथ है यहाँ पर मेरे हैंड में कनेक्टेड है? माई हैंड इज कनेक्टेड टू माई होल बॉडी, ऑल माई ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू माई बॉडी. So I as an individual cannot operate singly out. My finger cannot be somebody who's really going out of the context and ऐसे हवा में एक अलग से घूम रही है. My nail over here, in fact, इतू सा nail भी जो है, that cannot exist or it cannot be mine without being attached to me. Similarly, a business cannot operate outside the society. It has to work within it. तो दैट इज़ द नीड कि हम जो बोलते हैं ना कि आप बिजनेस स्टडीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करो, आप रियलिटी में जाके देखो, उसका रीज़न यही होता है उसके पीछे कि दैट वी वांट दैट यू अंडरस्टैंड आउट देयर कि कितना ज़रूरी है चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने का, क्योंकि बिजनेस लाइज इनसाइड द सोसाइटी एंड अमंग द सोसाइटी, विद द सोसाइटी, विद इन द सोसाइटी. तो अगर आपको बिजनेस को समझना है तो पहले आपको सोसाइटी को समझना पड़ेगा, उनके माइंडसेट को समझना पड़ेगा. आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर एंगल से आपको उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा. When you see this picture over here, it is telling you the psychology inside somebody's mind. Business also is actually the result of that idea being popping up over here. दुनिया में 100 लोगों को 100 अलग अलग तरीके के आइडियाज आते हैं. But what culminates into a business is the practical application of that idea into reality. तो business studies जब हम बात करते हैं as a subject, तो business studies को भी अगर हमें real life में लाना है actually inside this, तो we need to understand कि उसका theory is not going to be enough. For you doing those head points is for just scoring the whole marks. Marks is the only game that you have NCERT से connection में. The real learning here is exactly not related to it. This is just a theory. The real learning comes when you actually apply this learning into something really so much fruitful. जब आप इस चीज़ों को समझ लोगे यहाँ पर properly, that is when you ideally become a student of commerce. Otherwise, trust me, scoring in commerce is way easy than anybody else. I highly respect the people who are going science क्योंकि उनको physics, chemistry, maths हर चीज़ का concept समझना है. बायो वालों को एक एक चीज़, एक एक एंगल, जैसे यहाँ पर ये फ्लावर है तो दे वुड हैव टू नो एवरी सिंगल पार्ट ऑफ दिस फ्लावर टू. When we talk about humanities, they have to deal a great deal of different social sciences also. Economics उनका भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है. Then उनके पास psychology है, sociology है, उनके पास अलग अलग history, geographies है. उनके पास उससे टॉप करने के लिए languages are also part for these people. Now when I talk this particularly in whole composure, we understand that the first thing over here is apologies for the commotion. So to the topic here, all the different languages which they have to express in, that's not an easy job. Scoring comparatively in your subjects of commerce, of accountancy, it's a very numerical subject. You can actually understand the format, you know the journal entries and you're cracking it. It's merely calculation out there. When you come across economics, there is a ton for you to understand, which also the humanities students are learning. When you come to the core pillar here, business studies, you learn the head points, you write something inside it, and you know you're going to score decent enough. Then why do you have to worry about the board exams? Why do you have to worry about the terminals and the final examinations? It's not about the syllabus. Please understand. जब मैं आपको बोलती हूँ कि बच्चा बाटी हम प्लस पर बैच लेते हैं, that batch is exactly just not about the syllabus. Syllabus, trust me, कोई भी पढ़ा देगा आपको. Literally कोई भी पढ़ा देगा.
even if I bring anybody normal person, a graduate over here, और मैं उनको बोलूँ आपको ये बुक पढ़ना है, इस बुक के पॉइंट्स को आपको बस बच्चों को रीड करके एक्सप्लेन कर देना है, उनसे वो हेड पॉइंट्स रटवा देने हैं, दैट्स ऑल. इट इज़ ईजी. It's easiest to teach business studies compared to economics and accountancy. But it is completely opposite of it if I have to say कि इनको इसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करवाओ. क्योंकि फिजिक्स है, मैं आपको मोशन बता सकती हूँ, मैं आपको मोमेंटम बता सकती हूँ, आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाट वेलोसिटी इज, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये पेंडुलम है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो ये ऐसे से मैं ऐसे मतलब इफ आई सेंड इट देन यू हैव टू जस्ट टेल मी कि ये रेस्ट पोजिशन में रहेगा कि कैसे बैक आएगा. आई कैन टेल यू न्यूटन्स लॉ, मैं आपको ग्रेविटी बता सकती हूँ वहाँ पर व्हेन द एप्पल इज फॉलिंग डाउन. हाउ डू आई टेल यू बिजनेस which is for a matter of fact something that you need to understand without even seeing it. It's intangible. उस intangible चीज़ को actually समझना, उसे apply करना is the most unique part of the subject that you see over here. Now the reason to take the session up again over here that I'm explaining you out is कि ज़रूरी ये है कि आप ये समझे कि आप क्या पढ़ते हो और exactly उसको कैसे apply करना है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक like we see a lady over here, she's engrossed into her phone and she's doing multiple things out there, thinking maybe in her mind, and she's typing out something or she's scrolling through something, जो हम सभी करते हैं in fact, right? Let's say school exams ख़त्म होने के बाद ही हम घर आके स्क्रॉल कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशन, शायद हमारा मेल, शायद हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स, जहाँ पर देखना है कि अरे कोई लेक्चर का अपडेट तो नहीं आ गया करके. स्कूल के क्लासेस राइट नाउ द वर्ल्ड इज ग्रोन सो वर्चुअल. प्रैक्टिकल चीज़ें हैव टेकन अ बैक सीट. व्हेन आई से प्रैक्टिकल चीज़ें लाइक फिजिकली एवरीथिंग डूइंग इज ऑल इन अ बैक सीट. हम सारी चीज़ें बस वर्चुअली तो कर रहे हैं. इस वर्चुअल वर्ल्ड में बिजनेस को समझना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है बच्चा पार्टी. क्यों बताऊं? क्योंकि अभी आपका बाहर का एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा है वे में कम हो चुका है. इट इज़ बीइंग कट डाउन. बिकॉज इट इज़ बीइंग कट डाउन, फ्रेश आइडियाज़ आने का स्कोप भी और कम हो चुका है. बिकॉज नाउ यू आर रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू योर रूम, जस्ट टू योर होम. बिकॉज दिस इज द पॉइंट ओवर हियर, हम क्लियरली समझ सकते हैं. यू डोंट सी अ कैट आउट देयर. You don't see a flower blooming out there. You don't naturally see the trees growing. You don't see how the traffic is being managed out there. आप ये भी नहीं देखते कि किसी को चोरी करने की ज़रूरत क्यों है. आप ये भी नहीं जानते कि एग्जैक्टली एक मेडिकल स्टोर में कितना स्टॉक है, या शायद एक गोल्ड स्मिथ अपने गोल्ड के साथ कैसे डील कर रहा है, हाउ ही और शी इज़ कैरिंग आउट द बिजनेस. आपको ये भी टाइम नहीं है ये देखने का कि हाउ द लॉयर इज एक्चुअली फाइलिंग द केसेस आउट देयर. तो रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होना. आप शायद आपके घर में शायद एक कोई लॉयर हो, शायद आपके घर में कोई आपके पापा या मम्मा या कोई भी जन फैमिली मेम्बर शायद अपनी ओन बिजनेस फॉर्म खोल के हो, शायद कोई किसी के पेरेंट्स टीचर हो, किसी के पेरेंट्स शायद डॉक्टर भी हो सकते हैं, किसी के बड़े भाई या बहन किसी और फील्ड में हो. पर क्या ज़रूरी है कि सारे फील्ड्स हमारे एक साथ हमारे फैमिली में हो? दैट इज़ अ रियली ट्रू रेयर जेम टू फाइंड आउट. तो व्हाट डज दैट मीन? Somebody whose dad is a lawyer would only know the legal aspects. उसको बाकी business world के बारे में पता ही नहीं होगा. Somebody who's the son or daughter of a doctor, they would know about the medical terminologies, but not the real life. So यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप ये समझे कि आपको समझना exactly क्या है. Now, coming to this point over here, जब मैं आपको कहती हूँ कि बच्चा पार्टी, business is a collaboration of multiple things out there. Now, when this multiple things that I'm talking to you right now, if I discuss about them, you see n number of words flowing out here. बराबर? Let me tell you these words out there. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर let me shift your aside. Okay. Now, you see the words business, you see success, turnover, profit, risk, employment, entrepreneur, government, supply, tax, resources, finance, price, stakeholders, trade, location, development, competitors, loss, side, ethics, technology, production, legislation, legal, kind, price of the products,
लोकेशन, ट्रेड, डिमांड, ऑपरेशन, स्टेक होल्डर्स, दुनिया भर की चीज़ें, एंड वन मिडिल वर्ड इज रिसर्च इज वेल. नाउ ये जब आप इतने सारे वर्ड्स यहाँ पर इकट्ठा करके हो, जब आप इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी सीख रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि इट इज़ गोइंग टू हैव अ रियली वाइड स्कोप? क्या द वर्ड रिस्क would only mean that, like, you know, the risk of playing PUBG in front of your school teacher जब लाइव लेक्चर ऑन है? क्या उसका मीनिंग ये होगा कि आपको यहाँ पर जो है म्योरली प्राइस पे करना है अपने डेयरी मिल्क चॉकलेट के लिए? क्या टैक्सेशन के बेसिस पर सिर्फ यही होता है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो थोड़ी बहुत सुन लो, फाइनेंशियल बजट जिस दिन आता है फरवरी के मंथ में, हाँ भाई उसको सुन लेना चाहिए हमें, और उस पर थोड़ा सा है ना, हमें थोड़ा सार्केस्टिकली रोस्ट कर देना चाहिए गवर्नमेंट को कि अरे यहाँ पर तो आपने ये किया, वहाँ पर तो आपने ये कर दिया. या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के नाम पर जो मतलब धवा बोल दो. आप सुनते ही हो जैसे सीएस तो पर्टिकुलरली जब व्हेन इट कम्स टू द डेडलाइंस तो एवरीबडी इज लाइक अरे इनको कितना काम है, कितना डेडलाइंस दे दे के रखते हैं, इनको तो मतलब जीने ही नहीं देते. देयर इज सो मच मोर टू बिजनेस देन व्हाट यू रियली सी आउट इन दिस वर्ड्स. दीज वर्ड्स आल्सो मीन अ लॉट बियॉन्ड वन सिंगल डेफिनेशन. तो जब आप बिजनेस स्टडीज सीखते हो तो बियॉन्ड द बुक्स जाने का आपका मीनिंग ये होता है यहाँ पर कि आप ये जाने, आप ये पहचाने, आप ये समझे कि आपको इन वर्ड्स को म्योरली थ्योरी से कनेक्ट नहीं करना है. यू नीड टू नो. लेट्स से आई गिव यू एन एक्टिविटी टुडे. हाउ डू यू नो अबाउट इट? अगर पॉसिबल हो आपका, अगर आप एरिया सेफ हो एग्जैक्टली, व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल इज जस्ट गो ऑन अ स्ट्रॉल आउट देयर. वॉकिंग के लिए चले जाइए कहीं पर भी, अगर इट इज़ सेफ, एंड ऑफ कोर्स टेक योर मास्क ऑन एंड take the most of the security that you can and the most of caution and precaution for every single thing, क्योंकि we have many states who are going through bird flu, many states are having COVID-19 अभी भी impacted है, mutated COVID से भी अभी बहुत सारे लोग impacted है already, they are into this dilemma. तो please make sure कि आप safety concerns को तो address कर ही रहे हैं. Now point out every single thing you can connect with business. That can be animals, that can be the trucks and vans, that can be the local shops that you see, that can also be the buildings that you look out for. Let's say that is a garden. In garden में बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं. Now I know it's exactly unethical and it's not at all good manners to listen or peep into what exactly others are like just saying. Is it's called as eavesdropping here. So I would not suggest you doing that, but one activity that you can do is just pass by people talking, just know or get the context of what their conversation is. मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप जाके पूरी उनकी बातें सुन लीजिए, गॉसिप सुन लीजिए. Just understand the context. You will find majority of the people discussing something randomly out there, and then you will find so many people out there, especially maybe the male gender, who would be talking some business. प्लीज़ उन बातों को समझें और मतलब जस्ट काइंड ऑफ गेट एन आइडिया कि मे बी ये किस बारे में बात करें, कौन से प्रोफेशन या बिजनेस या कौन से इंडस्ट्री के बारे में इनकी बात हो रही है. मेक आउट अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन जस्ट रियली वंडर आउट देयर एंड थिंक कि शायद ये चीज़ें हैं रियल लाइफ में, ये सारी चीज़ें बिजनेस से कोरिलेट कर सकते हैं हम. कोई भी चैप्टर आपका हो, भले 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड, विच एवर एरिया, विच एवर स्कोप, लाइक मैनेजमेंट इज समथिंग विच 12th standards, two-third of the syllabus, like 67% of the syllabus is mostly based on management only. तो you guys also have a very good scope to understand कि management को कैसे connect कर पाए हम लोग. ठीक है, so that is your prime activity for the day that you can understand. This is your episode 1. I would really look forward to all the different episodes that I want to wish to bring up here. But the whole theme over here is to make sure कि आप लोग इसको पसंद करें, आप लोग इसको maximum like and share करें ताकि हम बहुत सारे students तक इसको spread कर पाए and we can make them fall in love with this whole beauty of business. कुछ बात है, कुछ चिट चैट्स करनी है आप सबके साथ जो नॉर्मल क्लास में रूटीन में हो नहीं पाती है. कॉन्वर्जेशन इज़ अ वेरी नाइस थीम गाइस, जो हम प्लस में करते हैं, हम यूट्यूब पर भी कभी कभार कमेंट सेक्शन में बात करते हैं, स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी पर होती है उन पर भी हम कई बार बातें तो करते ही रहते हैं. बट द पॉइंट हियर इज गाइस कि बातें हमें वो करनी है
जो जज्बातों भरी हो और थोड़ी सी रैशनल हो, लॉजिकल भी हो. In this conversation where I bring up to you different things from the real world, I would want the mere purpose of bringing this out to you ऐसा वन वे कम्युनिकेशन की रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है ना, कॉन्वर्सेशन के बीच में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलनी होती है वो छूट जाती है. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जानना बहुत कुछ होता है, बट दे समटाइम्स गेट इरिटेटेड बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन दैट वी काइंड ऑफ हैव. तो ये सीरीज पर्टिकुलरली उन सभी के लिए है who want to just in a very small gist like know and understand about the various different things that happen across. So these are my good wishes for you all. आई होप आपको एपिसोड 1 पसंद आया हो. आपने इसमें से कुछ ना कुछ तो पीछे आप ऑब्वियसली अपने साथ लेके जाएंगे वंस वी आर गेटिंग डन विद इट. दिस इज लाइक एन आइस ब्रेकर सेशन जहाँ पे आई वॉन्ट यू ऑल टू ओपन अप योर माइंड्स. आगे हम अलग अलग टूल्स देखेंगे, अलग अलग रियलिटी चेक्स देखेंगे, अलग अलग चीज़ें करेंगे. बट फॉर ऑल ऑफ दीज आई वॉन्ट योर मैक्सिमम सपोर्ट गाइज. जितना आप लोग इसको स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करोगे उतना आई कैन एंड माई टीम कैन वर्क द बेस्ट ऑन इट एंड वी कैन डिलीवर द परफेक्ट कॉन्टेंट आउट देयर. नाउ रही बात हमारे साथ पढ़ने की कि बहुत लोगों के मैम रियलिटी वगैरह तो सारी चीज़ें ठीक है बट हमें पढ़ना भी है, बुक्स भी है, पेरेंट्स भी नहीं छोड़ेंगे, स्कूल्स भी नहीं छोड़ेंगे एंड ऑब्वियसली मार्क्स के लिए ज़रूरी है. ऑफकोर्स ज़रूरी है, वो तो पढ़ना ही है, उसके बियॉन्ड भी पढ़ना है. बट बिफोर स्टडिंग बियॉन्ड वी ऑल्सो नीड टू नो कि बियॉन्ड के पहले का जो ओरिजिनल बुक है वो क्या है. तो फॉर दैट पर्पसेस यू कैन डेफिनेटली ऑलवेज ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस. नाउ व्हाई अनअकैडमी प्लस? क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको सारे टीचर्स का साथ एक साथ. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरी अदर टीचर आउट देयर जो इंडिया के टॉप बेस्ट फैकल्टीज़ है हमारे पास आपको पढ़ाने के लिए. आपके हर कोई सब्जेक्ट्स इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू 11th या 12th, 6th स्टैंडर्ड से लगाकर 12th स्टैंडर्ड तक, और भी अदर सारे डोमेन्स जैसे कि IIT JEE हो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नीट के हो, NTA UGC के हो, MBA के लिए कैट प्रेपरेशन हो, या CA हो, या लॉ के लिए क्लैट हो, सारी एग्जाम्स की आपको पूरी कवरेज जो है. इनफैक्ट आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस लाइक UPSC, MPSC, MPPSC, UPPSC, सारे स्टेट लेवल कमीशन एग्जाम्स और जो हमारी अल्टीमेट UPSC है, सारे आपको मिलते हैं एक रूफ के अंडर. ओके, नाउ पर्टिकुलरली जो मैं अभी बात कर रही हूँ दैट इज़ रिगार्डिंग योर CBSE स्टूडेंट्स एंड 12th स्टैंडर्ड पर्टिकुलरली. तो आप सभी को भी लाइक ऑल ऑफ देम आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे हर सब्जेक्ट के रोज़. आपके लिए वीकली क्विजेस होंगे, आपके लिए डाउट क्लियरिंग के सेशंस भी हमने स्पेशली रखे हैं. तो हर 3 सेशन होने के बाद चौथा आपका डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाता है. इसके बाद में हमने आपके लिए रखे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे जब भी आप चाहें आप वहाँ पर आ सकते हैं. आपको MCQ सॉल्व करने आप वो कर सकते हो. टेस्ट सीरीज़ आपके स्पेशली डिज़ाइन होती है, हर टॉपिक पे टेस्ट सीरीज़ है, हर पूरे स्लॉट्स पे, मतलब पूरा पेपर जो है लाइक फुल सब्जेक्ट ऑफ योर उस पे है. अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टेस्ट है, MCQ वाले टेस्ट है, छोटे टेस्ट लाइक अराउंड 30 क्वेश्चंस वाले, 20 क्वेश्चंस वाले, ऐसे की भी MCQs हैं हमारे पास. आप चाहे उतने MCQs आप दे सकते हो. उसके अलावा द बेस्ट पार्ट दैट वी हैव इज आपके रिटन पेपर्स भी चेक होते हैं. ओके, दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ देयर गाइस. क्योंकि आज के टाइम पे आपको कौन, मतलब भले आई से कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल, पर क्या मैं प्रैक्टिकली आपके सब्जेक्टिव जो आंसर्स हैं आप राइट करके हमें देते हो, क्या हमें वो टाइम है वो चेक करने का? बट वी हैव अ स्पेशलाइज्ड टीम जिनको बोर्ड लेवल का पूरा एक्सपर्टीज नॉलेज है, जिन्होंने चेक कर रखे हैं पहले पेपर्स. दोज टीम लाइक दोज पीपल आउट देयर आर देयर फॉर यू कि वो आपका हर आंसर जो है उस पेपर में चेक करें, आपको फीडबैक दे कि हाँ आप शायद यहाँ गलत हुए हो, आप ये एरिया को इम्प्रूव कर सकते हो. एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट गाइज. इसका पूरा फ़ायदा ले क्योंकि आपके सारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज सबके लिए. एंड इससे ज़्यादा बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि आपको ट्रैवल कम्युनिकेशन में टाइम ही जो है आपका कम्युनिकेशन में वेस्ट नहीं करना है. ओके, यू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज का. तो रिकॉर्डिंग भी अगर लेट्स से आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो, आपको रिकॉर्डेड देखना है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. आपके लिए टॉप बेस्ट फैकल्टी है हमारी. उसके बाद आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा एंड आपको सारा PDF जो फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है वो भी मिलेगा. उसके अलावा हम जैसे एक्सपर्ट्स की गाइडेंस एंड मेंटरशिप तो आपके साथ है ही है. तो आपको उसके बारे में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हम कौन सी चीज़ कब और कैसे करें. हमारे पास प्लस और आइकॉनिक भी है. आइकॉनिक क्या है? प्लस तो आपका नॉर्मल हो जाता है,
प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ आपके लिए जो अगला स्टेज है हमारा, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक इज लाइक और ज़्यादा आपको अगर डिटेल्ड आपका मेंटरशिप चाहिए तो एक पर्सनल मेंटर स्पेशली आपको असाइन कर दिया जाता है। वो आपको पूरा स्टार्ट टू एंड हेल्प करते हैं। आपके पेरेंट्स को कोई आप डिस्कशन करना हो, उनको कभी भी पेरेंट कनेक्ट चाहिए तो ओपन आवर्स रहते हैं उनके लिए, ताकि वो अपनी जो भी इश्यूज है वो वहाँ पर एड्रेस कर पाए। आपके लिए स्पेशली एक स्टडी प्लानर बनाया जाता है जिससे आप देख सको कि आपकी पूरी प्रेपरेशन कैसे चल रही है। वीकली रिपोर्ट मिलेगा कि भाई आपने कितने क्लासेस अटेंड किए, कैसे अटेंड किए, आपका परफॉर्मेंस कैसे रहा है, आपके टेस्ट और क्विजेस कैसे रहे हैं, ये भी देखना उनका वहाँ पर फर्ज बनता है। और वो स्पेशली आपको इन सारी चीज़ों के लिए गाइड करेंगे। तो गाइज मेक श्योर, आई नो फ्री कंटेंट आप लोग बोलोगे मैम वो तो हर ही जगह अवेलेबल है, ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे हमको मिलता है, यूट्यूब हो तो सारा पढ़ाई वहीं से क्यों नहीं कर लो। ऑफ कोर्स पूरा कंटेंट वहाँ भी अवेलेबल है। हमारी स्पेशल क्लासेस जो होती है अनअकैडमी के ऐप पर, ओके उनको भी आप फ्रीली एक्सेस कर ही सकते हो यूजिंग द कोड DGD10 या फिर DHWANI ध्वनि। ओके तो ये तो आपको ऑब्वियसली एक्सेसिबल है ही है। But why I say plus and iconic, the reason here is because this is to make you one step closer to your dream. And this dream is not just to score your marks, but to understand the whole ball game in such a beautiful manner in your 11th and 12th standard only. मतलब जो बाकी लोग जिस जगह पर लैक कर रहे हैं वो लोग खाली बुक्स को समझ रहे हैं, आपको उन बुक्स से कहीं आगे जाना है मेरे दोस्त। और जब ये आगे जाओगे, जब इन चीज़ों को समझोगे, तभी इन बारीकियों से, लेट मी टेल यू, आपने 90+ स्कोर कर लिया 12th में डजेंट मीन, 10th में कर लिया डजेंट मीन यू आर अ प्रो इन टू दैट सब्जेक्ट एरिया। आप खाली अपने उस थ्योरी में प्रो हो, आप सिर्फ उस थ्योरी में प्रो हो, आप सिर्फ उस लिखने की स्टाइल में प्रो हो, आप सिर्फ उस चीज़ में प्रो हो कि आपके एग्जामिनर को क्या आंसर चाहिए आपसे ना, आपने वही आंसर एज इट इज उनको प्रेजेंट कर दिया। यू आर प्रो इन टू दैट। बट योर प्रोनेस, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो पूरा कैलिबर है, वो वहाँ एक्सप्लेन होगा जब आप आपके 12th के बाद आगे बाहर ओरिजिनल लाइफ में निकलोगे और वहाँ आपको अपनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इस्टेब्लिश करनी होगी। तो होल बॉल गेम फॉर योर प्लस एंड आइकॉनिक इज एक्चुअली फॉर दिस। ओके सो जो 12th है, जो अगेन आपका जैसे टाइम पीरियड हो, लाइक लेट्स से अगर आप भी राइट नाउ इस वीडियो को देख रहे हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए 6 महीने बाकी है, 4 महीने टोटल इन टोटल, एंड वो खत्म होते होते 6 महीने हो जाएंगे। तो आपके लिए 6 मंथ्स का 9000 वाला ये जो पैकेज है दैट विल बी द परफेक्ट वन। जो 11th है बच्चा पार्टी, आप अगर अभी राइट नाउ इस चीज़ को देख रहे हो तो आपका अभी तक 12th स्टार्ट होना है, आपको 11th ब्रश अप करना है और 12th दोनों अभी स्टार्ट करना है, तो यू कैन टेक दिस 15 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन which is for 16,200 rupees after 10% discount। ठीक है, now this prices are already 60% of the original price, क्योंकि आप देखो एक मंथ का एक नॉर्मल इंसान को 3,000 रुपीज़ में पड़ता है, वही 15 मंथ्स आपको शायद 15 3 से 45,000 में पड़ना चाहिए था। बट बिकॉज वी प्रमोट यू टू बी लॉन्गेस्ट एसोसिएटेड विद अस और आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो, क्रैश कोर्सेज, आई डोंट वांट कि आप सिर्फ 1 महीना 3 महीने का स्टडी वाला करना है, क्रैश कोर्सेज ले लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, 1 मंथ 3 मंथ ले लो, जो सिलेबस है वो कर लो। बट अगर आपको एक रूटीन मेंटेन करना है, आपको अगर आपको एक्चुअली उन चीज़ों पे, कॉन्सेप्ट्स पे ग्रास्प पकड़नी है, दैट इज़ व्हेन आई टेल यू कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मेरे साथ कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहो। चीज़ें एक दिन में नहीं सीखी जाती, 2 महीने में काम किसी का पूरा नहीं होता है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, यू डेली नीड टू बी इन टच विद द टीचर एंड यू डेली नीड टू इंटरेक्ट विद अस। दैट इंटरेक्शन के लिए आई एम टेलिंग यू टू प्लीज गो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शंस। This will not just save your cost but save your efficiency, your energy and your efforts, and help you not just do the hard work way, it will help you to take the smart work manner also। तो गाइज डू नॉट फॉरगेट, अगर आपको पहले आप बोलोगे मैम मैं डायरेक्ट कैसे पैसा इन्वेस्ट कर लूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, ओके प्रोफाइल की लिंक है, आप वहाँ पर जाए, आफ्टर फॉलोइंग मी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे मेरे सारे फ्री क्लासेस का। उन फ्री क्लासेस को मेरी या किसी और भी एडुकेटर की अगर आपको चाहिए कि लेट्स से नहीं मुझे इनकी देखनी है, उनकी देखनी है, 11th 12th की नहीं, मुझे मैं किसी और स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, मैं तो खाली यहाँ पर आ चुका हूँ या मैं कोई अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप कोई भी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए यू कैन यूज दिस कोड DHWANI, दैट इज माई स्पेलिंग। अगर वो नहीं जमे तो आप DGD यानी ध्वनि गांधी डी वाला कोड भी यूज कर सकते हो, तो DGD 1010। ओके
दैट्स ऑल दैट यू हैव टू यूज गाइज। और वहाँ पे आपका जो सारा फ्री कोर्सेज है, वो फ्री कंटेंट है, वो पूरा अनलॉक हो जाएगा अनअकैडमी के ऐप पर या वेबसाइट पर। उसके बाद अगर आपको मन करे कि नहीं मैम हमें सीरियसली अच्छा लगा है, हमें आपके साथ कनेक्ट होना है प्लस पर, तब सब्सक्रिप्शन लेते वक्त भी यही जो कोड है आपको हेल्प करेगा 10% डिस्काउंट लेने के लिए। और उससे ज़्यादा अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि मैम हमें लॉन्ग टर्म तो लेना, बट एक साथ इतना ज़्यादा पैसा हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको सारे क्रेडिट कार्ड्स पर और कुछ चुनिंदा डेबिट कार्ड्स पर ईएमआई ऑप्शन भी है अवेलेबल। इनके पास गूगल पे, पेटीएम वगैरह है, तो आप लोग उससे भी पेमेंट्स कर सकते हो आपने। तो दैट इज़ एंटायरली अप टू यू कि आपको कैसे, मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपके पास कैश ही मनी हो या पूरा डेबिट कार्ड में ही मनी हो। देर आर अदर फॉर्म्स ऑल्सो। ऑल आई रिक्वेस्ट यू इज़ कि आप फॉलो करने के बाद जो है मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर देना वहाँ पर, क्योंकि फॉलो नहीं करोगे तब तक मैसेज नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही मैसेज आपका आता है ऑप्शन, आप मुझे पूछ लेना कि मैम मुझे लेना है एंड प्लीज़ मुझे गाइड करें कि ये मेरी दिक्कत है, मैं कैसे इसको सॉल्व करूँ। आई विल बी देयर एट योर एंड एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। ओके और अगर वहाँ पे नहीं होता है, मैसेज करवाना पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी ब्लॉक भी कर देता है अनअकैडमी लर्नर्स को, तो वो नहीं पॉसिबल होता है, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर लेना @अनअकैडमी ध्वनि हमारा चैनल ही है। ओके तो आप टेलीग्राम पर जस्ट जाके टेलीग्राम डाउनलोड कर ले @अनअकैडमी ध्वनि। ओके अनअकैडमी की स्पेलिंग UNACADEMY अनअकैडमी, एंड ध्वनि मेरी स्पेलिंग जो है, इनको टाइप कर ले, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ओरिजिनली पर्सनली मुझे मैसेज करना है, ध्वनि गांधी पे भी आप मैसेज कर सकते हो, एंड आई बी एट योर एड टू हेल्प यू विद एनी सॉर्ट ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस दैट यू हैव। प्लीज़ मेक श्योर इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर NCERT स्टडीज, वो कोई भी करवा देगा। It's an investment to develop you, your personality, and your knowledge skills, which is connected to the reality. So stay tuned, guys. I really want to bring up some amazing series for you all, but it all depends on how you support this one. So please make sure कि you are liking it, you are commenting below to let me know कि आपके क्या views है इस पर, and also share it to the maximum number of students that you can, and so that we just create an amazing community out there of all you अच्छा अच्छा मेरा बच्चा पार्टी। ठीक है, so thank you so much and मिलते हैं आप सभी से super duper jaldi with yet another course, yet another segment out there, yet another enjoyable moment, and till then let's crack it. See ya, tada, and bye bye.